Guys, for everyone who is listening to this podcast right now, especially the people who are in Spotify, sorry for the delay. We have recorded a 1.5 hour long podcast, just especially for you guys. So, if you have any task, any chore, any important thing to do, I would highly suggest, me and Okas would highly suggest that put your earphones on, relax, and listen to this in the background because it's gonna be a very long video. And man, the amount of tangents we have jumped, me and Okas, in this one. You're in for a This was wild great. ride. Welcome everybody. I'm forgotten how to do the intros. Welcome everybody to another episode of Person Behind the Persona podcast. This is the podcast episode, and today it is another solo one. What? Yes, it is. And today we have my lovely co-host Rav with us on a chair. Yes, I sir. see that you have gotten a new chair, Rav. Yes, sir. Abba. नहीं एक्चुअली this is not the one which I bought. वो आ रहा है but it's the same one. Oh, मतलब okay. यही वाला ऑर्डर किया है. मैं दोस्त के पास पहले से था. I bought it. Okay. So what are we gonna discuss today, Rav? It's been a while since we have recorded. We've been slacking on the podcast. We have been. Yeah. We have been. और Spotify वाले लोग बहुत गुस्सा होंगे हमारे साथ. हम कुछ डाल ही नहीं बिल्कुल Spotify भी में. नहीं डाले. 1 महीना हो गया लगता है लास्ट टाइम हाँ, जब ये तो डाले. ये तो गलत सीन हो रहा है. बहुत ज़्यादा गलत सीन हो रहा है. कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में. कुछ Spotify के लिए एक्सक्लूसिव बना है क्या हमको भी? बनाना पड़ेगा स्पॉटिफाई के लिए. हम सोच रहे थे कि ऐसा करें ओकस और मैं जब भी हम दिन में कुछ कर रहे हैं और दिमाग में कुछ पॉपअप हुआ वी जस्ट डिसाइड टू डू लाइक दिस वॉइस नोट्स दिस सिंपल शॉर्ट वॉइस नोट्स. तू ओवर एक्टिंग मत कर बिल्कुल भी प्लीज़. बट हाँ ये सोचा दिस वॉज वन आइडिया विच वी वॉन्टेड टू डू स्पॉटिफाई में लाइक दिस वुड बी सोलो ऑब्वियसली बिकॉज वी डोंट कोऑर्डिनेट दैट. Short, very short, like 10 minute or 5 minutes, something to put out on Spotify to like any thought which came up into your head. Yeah. By So you guys will have to tell us in the comment section. by what you solo want. do you mean क्या कहते हैं? Bus take out your phone and record something and put it out. That's all. I think what we can do is build upon that. Take out your phone, record something, and then post it with like discuss it with each other and then post it instead of going solo because solo can be a bit lackluster. That way because this is much like when you and I talk we get to organize our thoughts because you and I have good conversations like that. We are cool like Right. that, but yeah, But very weird, right? It is. Trying to figure out how like how, why, yeah. क्यों? 19 and you're like 25. I recently I'm not sure if you told me this before or not. Yeah. You have sinusitis. I also. do. Yes, I do. You also have it. Yeah, I know. yeah. I have sinus. Wow. You discovered it today because I got a Yeah, sponsor. Get flexed on, bitch. I wanted to talk about that also. Like you put out the video and you it's like Okas gets one brand deal and he's like मैं परफ्यूम यूज करता हूँ पर मेरा नाक काम नहीं करता. That is what he like the brand you were like इसको क्यों पैसे दिए किसने इसको सेलेक्ट किया था. सर इसने कमेंट सेक्शन में लिखा था सर और उसको बहुत सारे क्या बोलते हो उसको जिस बंदे के कमेंट सेक्शन में लिखा था उस बंदे ने उसको बहुत भाव दिया था सर इसलिए हमने इसको ले लिया. Likes भी आए थे बहुत. तुम साले तुमको निकालो फायर करो इस बंदे को पहले ठीक है ना. साले इनको साइनस है उनको लेके आ रहे हो तुम बेशरम. अरे सर परफ्यूम के लिए पिच कर रहे हैं सर वो खुद थोड़ी सूंघेंगे दूसरों को सूंघाना है ठीक है. आप क्यों चिंता कर रहे हो बस डालो इस बंदे को. ये सीन्स हो गए भाई. If you haven't noticed, your dad has changed his content a bit. Yes sir. We are actually not really. We are still doing the commentary and the gamings and all that stuff. You're trying things out. Yeah, I'm trying things out. I got मेरे को बहुत जब मैं I guess 10,000 पे था 10-15,000 पे तब मुझे अजय का कॉल आया था अजय कैरी बनाटी का. And he had told me that बेटा करो ट्राई नहीं तो तुम्हारे लग जाएंगे लोड़े. क्या होगा ना तुमको सिर्फ एक ही तरीके का कंटेंट तुम अपलोड करोगे और ऑडियंस सिर्फ एक ही तरीके का कंटेंट देखना पसंद करेगी तुम्हें लगता है अजय वाज vicariously trying to tell you that don't make the mistake I made. Maybe, who knows, but from what I remember he had a whole year of the skit phase. You remember Skit phase? I remember this one time he was trying to do cartoons. yeah Cartoon version of Ajay that did not work out for him. By at that point of time I was really like मैं honestly बताऊँ 2016 है ना 4 साल पहले की बात है सर. like I'm not any more insecure about that but उस point पे टाइम में I was like अरे भाई मैं कर रहा था ना उस टाइम पे रोस्टिंग मेरा था एनिमेटेड कैरेक्टर था ठीक है. तो I was like अरे भाई ये तो कर रहा है अब तो भाई सब लोग मुझे बोलेंगे कैरी कॉपी ठीक है. तो I was like ओ भाई that is a good point that we'll get back to.
It will be a whole circle. Carry की copy thing. But Copy. The idea of copying. Yeah. Yes. But तो अजय ने मुझे मैसेज किया था. Let's not go off on a tangent and finish this what we started. अजय ने मुझे मैसेज किया था उस समय. एंड उसने नहीं सॉरी कॉल किया था और उसने मुझे ये बात बोली थी कि बेटा तुम करो क्या कहते हैं जितना हो सके एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फिर तुम नहीं कर पाओगे. एक स्टेज आएगा जिस पे तुम नहीं कर पाओगे और ये जो तुम एसेस बना रहे हो ना ये गिरेंगे बहुत जोर से एक समय के बाद. और ये फैक्ट बोला था उसने. एज मच एज आई वुड लाइक टू डिसअग्री एंड आई वुड वांट द एसेस टू क्या कहते हैं आगे जाएं, ये तो हम सबको पता है कि YouTube पे अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुमको लौड़ा थमा दिया जाएगा. बहुत सिंपल बात है ये. ऐसे तुम्हारे चल जाएंगे Netflix पे. मुझे आई फील लाइक ओकस डायरेक्टली ऐसे फिंगर पॉइंट करके बोल रहा है राव तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें लौड़ा तुम्हें थमा बोल रहे हैं तुम सारे तुम क्या कर रहे हो. तुम्हारा एक चैनल पे 1.6 के सब्सक्राइबर होते हो, तुम एक वीडियो नहीं डाले हो, क्या कर रहे हो. कितना महीना हो गया? 3 महीने. बढ़िया. गेटिंग बैक टू द पॉइंट. सो मैं यही देख रहा था कि ये सब मुझे टिप्स मिली थी एंड आई वाज क्या कहते हैं क्या रिफ्लेक्टिंग अपॉन दैट एज वेल एंड आई रियलाइज कि कोर ऑडियंस, तुझे पता है ना हम लोग का एक यूट्यूब में एक टर्म रहता है कि तुम्हारी कोर ऑडियंस कितनी स्ट्रांग है. उससे वो तुम्हारी जो कोर ऑडियंस जितनी स्ट्रांग रहेगी ना उतना यूट्यूब उतना तुम्हारे मार्केट में वैल्यू है. ओके. अगर तुम्हारी कोर ऑडियंस स्ट्रांग है ना तो उतना ही तुम्हारे यूट्यूब मार्केट में वैल्यू है. एंड इस मार्केट से मेरा मतलब है स्पॉन्सर्स में. गॉट इट. ठीक है, क्योंकि कोर ऑडियंस बढ़िया है तो देखेंगे भाई कि ये बंदा जो भी डाल रहा है ऑडियंस आ रही है, मतलब क्लियरली ही कैन मेक एनीबॉडी हिज ऑडियंस इंटरेस्टेड इन एनीथिंग ही पोस्ट. राइट. व्हिच मींस इफ ही टॉक्स अबाउट आवर प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आवर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन इट. राइट. करेक्ट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गाइस बिकॉज तुम में से कई सारे मेरे को DMs आते हैं राव, स्मॉल यूट्यूबर्स दैट आर ट्राइंग आउट. 16-17 साल के बच्चों के DMs आते हैं तो जो बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से मैं यूट्यूब के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख पाता हूँ और अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाता हूँ. तो उसके लिए मैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या हुआ कि मैंने यू रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो दैट वाज द फेस कैम विच वाज इन सर्च ऑफ सोलस. याद है तुझे? इन सर्च ऑफ सोलस. वो वीडियो was my worst performing video till now. Even though you loved making that video. I loved it. Was my god, it was such a it gives me a warm fuzzy feeling watching it. I recently rewatched it with the boys, Rishu and everybody, and we cried. Like oh yaar kitta I was such a baby. That's what I feel. It's so weird man. But yeah, so that was my worst performing video. And then I looked back and now I did a similar story time video which was still on the more entertaining side than just a simple vlog. But that did much better when compared to this. Not only because my channel has grown much more than that, but also because my core audience has also increased. And that is because, and this is what Surya told me, कि तू देख तूने पिछले कुछ समय में तूने कितनी वीडियोस नॉट ऑन द लाइक जस्ट तेरी है जो किसी ने नहीं बनाई. जैसे अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते हैं उस पर तो 10 लोग बनाते हैं ना वीडियो, 10 क्या 100 लोग बनाते हैं. पर कुछ रहते हैं जैसे रिएक्शन तुम ढूंढते हो, लिंक्डइन जो भी है बहन चोद, रिएक्शन ढूंढते हो, कमेंट्स ढूंढते हो, ट्वीट्स ढूंढते हो. ऐसी कितने लोगों ने बनाई है वो देख तू. एंड देन आई वाज लाइक अच्छा सो दैट तो वो जो लोग देख रहे हैं वो है कोर ऑडियंस तेरी. वो है तेरी कोर ऑडियंस. और कैसे बढ़ाते हैं इसको वो तो भाई अभी भी हमको नहीं पता, क्योंकि अगर हमको पता रहता तो हम शायद मिलियंस पे होते, पर हम फिगर आउट कर रहे हैं. तो आज का लेसन है बच्चों कि कोर ऑडियंस पे ज़रूर फोकस करना. और कोर ऑडियंस आती है थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट से. सो जैसे एक समय पे मुंबई का निखिल ने कहा था खुद का कंटेंट बनाओ. ओए फक एक्चुअली ही इज गेटिंग मैरिड मैन. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम इवन दो आई डू नॉट लाइक द पर्सन. आई एम हैप्पी. ना आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. या आई एम. I hope you send him a gift on his marriage. I would even if I don't agree with him, you know what, yeah, I don't agree with him on many things, but even then if I knew him like who do I know, like if I knew him I would have sent him a gift congratulating the couple. I wish nothing but happiness for the couple, honestly. But yeah, okay, let's go back to the topic. You अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्या बोला था तुमने, हम भूल गए. कॉपी के बारे में about the discussion. So here is how I would like to put this.
let's first, instead of projecting onto solutions, let's actually try and identify कि problem है क्या बिल्कुल कॉपिंग वाले सिनेरियो का. मैं कुछ चीज़ें जॉट डाउन करूंगा और तुम मुझे बताओ कि हाँ if I'm missing something out, ठीक है, उस पार्ट में. or first I would like, this is a discussion and not a debate. तो neither of us know the solution. क्या करना चाहिए हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं भाई. राइट. ओके, तो इसमें सीन ये है कि हम एनी आर्टिस्टिक फील्ड में मिमिकिंग समबडी और कॉपिंग समबडी और टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम समबडी हैपेंस, राइट? इट्स वन ऑफ वेरी रेगुलर केसेस होता है, ठीक है. दैट डजंट जस्टिफाई इट इन एनी वे, बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ आर्ट, ठीक है. वी विल स्टार्ट ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन यूट्यूब, ऑन वीडियोज. Why so? We are not even going to talk about filmmaking. The reason why I would say we should not talk about it is, firstly, I mean, I wouldn't talk about it because मैं उस डोमेन में हूँ नहीं, ठीक है. मैं इस डोमेन में रहा नहीं हूँ. मेरे तो 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, 1 साल क्या 3 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा उस डोमेन में, ठीक है. I don't even know, like I don't even follow the big leagues. बिल्कुल सही, ठीक है. बिल्कुल सही. फिल्म में तो मैं फॉलो करता भी हूँ, पर मैंने तो आज तक एक शॉर्ट फिल्म खुद से नहीं बनाई है. बिल्कुल तो who am I to speak about these things, right? That would justify that. YouTube वाले सिनेरियो में, especially for YouTube India, we are only talking about YouTube India, क्योंकि बाहर का तो छोड़ो भाई. बिल्कुल सही. तो उस सिनेरियो में 3 चीज़ें होती हैं. There are 3 types of scenarios. One scenario is when you, let's say for you have created your own style, or like you have, and your style is not something, let's be clear, when someone says that you have created your own style, एक बात होती है कि whatever you build, you usually build on top of giants. Giants are people you watch. They can be anybody, right? They can be foreign YouTubers. They can be, like, it's possible है कि नहीं होगा. तो मुझे बताओ कि एक बंदा है जो ड्रॉ करता है. He is not even on YouTube, right? But you love his style so much so that you are like, हाँ ये बहुत सही है, इसको मैं यूज़ करके I will try to convert it into a video format. Let me see that if I can do that. That's a challenge, right? In some sense. And then you come up with something. It's basically layering on top of each other. तुमने और मैंने एक वीडियो देखी थी केसी नाइस्टैट की. बिल्कुल, ठीक है. बिल्कुल. क्या बोला था उसमें? उसने बोला था, I love seeing YouTubers who layer themselves on other YouTubers who have been previously come up with their own style. Right. It's basically what we're trying to say is there sometimes style comes from you taking elements from different YouTubers and coming up with something if your own. कुछ नया composite बन जाता है एक तरह से. बिल्कुल, ठीक है. yeah. इसको अब 3 सिनेरियोज हो सकते हैं. तुम्हारे लेवल पे तुमने एक स्टाइल निकाला और कोई छोटा यूट्यूबर तुमसे पिकअप करता है, ठीक है, straight up tries to mimic you. There can be various reasons for it. One reason can be they really like your style and they want to see if they can actually pull it off. Number one. Another reason can be something as simple as, oh, maybe your videos are doing really well and the person is not getting any recognition and they want to see if it works for them as well. Right? That is also possible. Usually, and that is one way. The other scenario is big YouTuber ने तुम्हारी स्टाइल उठा ली, ठीक है. The third one, which we usually don't talk about, is तुम्हारे peer YouTuber ने, तुम्हारे similar level के YouTuber ने तुम्हारी स्टाइल उठा ली, ठीक है. बिल्कुल. अब हम ऐसे, we can very easily try to approach these 3 scenarios with the idea कि अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है. Okay. Instead of doing that, why don't we see the impact of these 3 events, these 3 different events, what happens in those scenarios, and how does it detrimentally affect the person whose style it actually is. ठीक है. छोटा यूट्यूबर है, तुम बताओ क्या होगा. छोटा यूट्यूबर ने उठा लिया. छोटा यूट्यूबर तुम्हें क्या हुआ? हम मेरी अगर किसी ने स्टाइल उठाई, वेल मेरी तो काफ़ी स्टाइल उठाई ही है, ये तो बहुत क्लियर ठीक है. अगर क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें उससे? क्या ही है, बच्चे हैं. Most of them are kids or younger than me. I haven't seen a guy who's older than me who has done that. I don't know why, but usually kids, and I see it as they're discovering themselves, because I do believe that YouTube is a journey of self-discovery. Right. So I think they're trying to discover themselves, and if this what I do works for them, wow, great, go ahead. The other 2 issues, the other 2 scenarios are slightly different, even though they are similar among themselves. Okay, I'll tell you how. बड़ा यूट्यूबर ने उठा लिया, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे तू तो इंसान ही है. बिल्कुल. मैं तो इंसान ही हूँ. ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हो तू तो बहुत, तेरे में तो इमोशंस है ही नहीं, ओहो तुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, तू इतना भाई
तुझे अपने आर्ट में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अलग लेवल पे कि भाई तू तो ये मानता नहीं है ना कि तेरा जो स्टाइल है, तू सो रहा था रात में और सडनली तेरे को किसी माता ने आके सर पे बोला कि हाँ ये है, ये जादू ने तेरे सर पे हाथ तो नहीं लगाया ना, हाँ तूने ही सीखा है ओवर टाइम प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो अब ये सोच, ये सिनेरियो हो गया, किसी बड़े यूट्यूबर ने तेरा कंटेंट, तेरा स्टाइल उठा लिया, ठीक है, एंड उसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, तू तो फिर भी जितना भी मान ले कि हाँ और ओकस है बड़ा तोप चीज़ है, तो बंदा 40K पे, बिल्कुल, और यहाँ पे लोग मिलियंस में खेल रहे हैं, मिलियंस वर्सेस 40K में अगर किसी को फ़र्क नहीं पता तो मैं ज़रा मैथ बता देता हूँ, 4% होता है, ठीक है, मिलियन का, ठीक है, 4%, तो 96% ऑफ द ऑडियंस एक्स्ट्रा है उस बंदे के पास। तो उसने स्टाइल उठा लिया और ऑडियंस तो यही समझेगी जो तुझे जानती भी नहीं है कि भाई हमारे बंदे ने तो क्या मस्त स्टाइल निकाली है, ठीक है। उसका बहुत नाइव सोल्यूशन हो जाता है क्रेडिट, उसके बारे में हम इसके बाद आएंगे, अभी नहीं, बट उसका एक बहुत नाइव सोल्यूशन दो लोग देते हैं कि हाँ भाई क्रेडिट कर दो, ठीक है, उसके बारे में बाद में आएंगे, एक सोल्यूशन है वो, ठीक है। क्या तेरा इंटरनेट। अब सिनेरियो आती है अबाउट द पीयर, या राइट। नाउ आई विल हेल्प यू टाई इट ऑल टुगेदर। क्यों मैंने तेरे को पूछा कि क्यों मैंने वो बात बताई कि हाँ तू तो है ही इंसान ना, मैं भी इंसान ही हूँ ना। तू 40K पे है, ठीक है, तेरा एक पीयर है जिसने तेरा स्टाइल उठा लिया। बाय द वे वी आर नॉट throwing shots at anybody, we're just having a discussion about these things, ठीक है, we are not throwing any shots at anybody, very very simple discussion so that people can know, तो सोचने लोग इसके बारे में, ठीक है। अब तेरे से पीयर ने उठा ली, ठीक है, बट there is a scenario where the peer is not that good or whatever, but उसने तेरे से उठा लिया और उसके व्यूज़ चढ़ गए, ठीक है, कितनी देर तक चढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टाइल तुम जितना भी मिमिक कर लो, बंदा तो ओरिजिनल रहता है ना, ओरिजिनल बंदे का सबसे बेटर रहता है, क्योंकि ही नोज हिज स्टाइल, ही नोज व्हाट ही कैन डू, द पोटेंशियल ऑफ द थिंग्स ही कैन डू, ही नोज, ठीक है। अब एक सिनेरियो आ गया कि लेट्स से तेरा पीयर, तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, लेवल 1 हो गया, ये लेवल 15 करते हैं थोड़ा, ठीक है। तेरा पीयर और नेचुरली फनी है, एंटरटेनिंग है, बट ही लैक्स समथिंग विच इज़ नॉट हेल्पिंग हिम ग्रो, बट योर स्टाइल लेट्स से हेल्प्ड हिम पुश, ठीक है, इट बिकेम द रियली पुश, हाँ अलग लेवल पे बन गया उसका वीडियो ओवरऑल। नाउ ही इज एंटरटेनिंग ऑल्सो एंड ही हैज़ दैट स्टाइल फैक्टर, ठीक है। अब सिनेरियो ये हो जाएगा कि वो बंदा तो ग्रो कर गया, बट यू डोंट हैव दैट नेचुरली फनी वाला सिनेरियो, फॉर एग्जांपल you lack something which he doesn't have, which he has, right? Organically will be about organically funny नहीं है, और organically let's say you are not entertaining, that is actually not true. Entertaining, anyone can be entertaining, but let's just go with funny people, funny, I think get the organically तो funny है नहीं, ठीक है, वो वाला सिनेरियो अगर हुआ तो भाई तू कोशिश कर रहा है, तू अपना स्टाइल से यू केम अप विथ योर ओन स्टाइल एंड समबडी पिक्ड इट अप एंड पुश्ड थ्रू, इवन दो दे माइट हैव नॉट लाइक हैड एनी ग्रजेस और प्रेजुडिसेस अगेंस्ट यू, वो तो ग्रो कर गया, बिल्कुल। इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, तुम मेहनत कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रहा है और वो ग्रो कर गया। एनवी इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन इमोशन, राइट। उस सोल्यूशन, उस सिनेरियो में क्या सिनेरियो, अब उसका सोल्यूशन वेरी इजीली पीपल बोल सकते हैं कि क्रेडिट दे दो, राइट। अब मैं एक चीज़ पता ओकस को पूछूंगा, बिकॉज ओकस कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओकस क्रेडिट से क्या होता है? लंड कुछ नहीं होता, ठीक है। ओकस अगर, और तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता क्रेडिट से कुछ नहीं होता है, मेरे 2000 फॉलोअर्स क्यों नहीं है इंस्टाग्राम पे अभी तक? इससे भी बेटर देता हूँ, इससे भी बेटर देता हूँ, कह रही कि कई वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम है भाई, बेस्ट एग्जांपल भाई, 25 मिलियन पे है वो, 25 मिलियन, एंड ओकस को क्या मिला? डेड चैनल। बताओ, ये मिलता है भाई जिंदगी में, सोचो बेटा। तो क्रेडिट इज व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज, क्रेडिट इज नॉट इवन अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ भी नहीं होता है। और जो बोल रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको कि अच्छा थोड़ी ऑडियंस आ जाती है, अरे भाई तुम क्या करोगे उस ऑडियंस का? लाइक अब वो चली जाएगी, क्योंकि इट्स ग्रेट ओकस टॉक्ड अबाउट द कोर ऑडियंस वाला डिस्कशन, वो आके चली जाएगी भाई, एक वीडियो देख के चली जाएगी। और तुम्हें लगता है वो 96% जो पीपल हैं वो आके बोलेंगे हाँ था, क्या बोलते हैं उसको, दिस बंदे ने तो उठाया हुआ है और तू ही सही है, 4% वाला बंदा, तू बहुत आगे जाएगा? तो लगता है सब शायद हो जाए, तुम उन 10 लोगों से क्या कर लोगे? तुम कौन से झंडे गाड़ लोगे? तुम बताओ, व्हाट डू यू थिंक होगा इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या इज दिस अ प्रॉब्लम? इज दिस द एक्चुअल प्रॉब्लम?
first of all? Rare occurrence, but happens. Hmm. I know a couple of people who has faced it in the business environment, not particularly on YouTube. They create a क्या कहते हैं product. A guy sees, I know what lags. Picks it up, does it. A great example, of course I'm not gonna drop any names, was there was a guy who created extremely good lofi beats, and he made it free to use. Use whatever you want. Yeah. A guy picked that concept, hired a producer, said, create lofi beats. I will make it free to use. Now he created an app. He said, this is a free to use app. You want streamers use a lot of no copyright music? You guys use it. ये रहा मेरा ऐप, इसको डेस्कटॉप पे डालो, चलाओ. He marketed it. ठीक है? मार्केट किया उस बंदे ने. This guy had a playlist who was on Spotify. This guy made another app. ठीक है? उसको मार्केट किया. स्ट्रीमर्स चलाए मस्त गाना. स्ट्रीमर्स क्या 4-5 घंटे चलाते, पूरी प्लेलिस्ट लूप पे चल रही है भाई. राइट. वो कमा रहा $50,000 $60,000 जस्ट थ्रू दैट ऐप. चढ़ गई वो ऐप. समझ रहे हो? ऑल्दो इसमें आई वुड से उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया मार्केटिंग में, पर ये मैं तुम लोग को जस्ट थोड़ा एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ. इतना दिमाग यूट्यूब वीडियोस में नहीं लगता है, ठीक है. पर ऑफकोर्स एज वी मेंशन, दोनों मेहनत कर रहे हैं. इसने भी मेहनत की, मेहनत तो इसने भी की, ठीक है. पर अब अगर यूट्यूब सीन में ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? पहले तो हमको देखना पड़ेगा एज अ ह्यूमन. Ideally, you need to understand this is what I think. Is he doing justice to it? अब जब आगे चला जाता है आदमी, तब क्या होता है? तब भाई, of course you'll be sad. That's human. But all you can do. What about the case of big YouTuber? क्योंकि उस केस में नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं डिफरेंस. पीयर तो ठीक है, कितना ही ब्लॉक कर जाएगा. Let's say you get 40, he gets 30, but now after the style he get like 70. ठीक है. Or even 100. Or even 100. Let's push it. कोई बहुत बड़ा like a million channel. हाँ, इसके आ रहे हैं 700-800. Yeah. और किसी को पता ही नहीं चला, भनक भी नहीं लगी क्या बोलते हैं उसको, ये सिनारियो हुआ है. लाइक जब भी तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, और ये क्रिएटर चाहे ना चाहे, ये ऑडियंस कर डालती है. तुम्हें याद है ना कि कैरी की कॉपी कितना कॉमन टर्म था एक समय पे यूट्यूब पर. अगर तुम कॉमेंट्री वीडियोस बनाते हो, तुम कैरी की कॉपी हो, मानो ना एंड अब तुम बोल सकते हो इन डिफेंस, बट अब तो नहीं होता ना. पीपल चेंज. हाँ भाई बिल्कुल चेंज, पर उस समय झिला तो हम लोग ने ना. झिला तो हमने भाई. हमको तो आ गए थे कमेंट्स कि कैरी की कॉपी है कि नहीं. हाँ ठीक है. अब यूजुअली पीपल ट्राइंग टू डिफेंड इट. लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो एसेज. मैंने ओकस से पहले इंडिया में वीडियो एसेज बहुत कम देखे थे. आई थिंक 1 या 2, बट दे वर नॉट रियली लाइक यूट्यूबर्स पर से. ठीक है. आई डोंट थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो एसे is exactly, what do you call it, how do I say it, it's a new fad ek tarah se. Essays is a new fad. Yeah, people can the reason why do you think that is? Why video essays is a new fad? Yeah, because man, this is very controversial if I say it. No, shoot, because people want to feel like they are intellectuals. Yeah. That is very true. That is quite very well put. I also think it's because I'm not trying to throw any shade at anybody, but like I'm pretty sure like 60-70% of the people who watch video essays quote unquote for the sake of watching it, अरे भाई हम तो कमाल का content देखते हैं. They can't even sit through like audio podcast, a 40-minute audio podcast. Yeah. Through and through. Yeah. They can't. Not only that, it's also because like even the people that create video essays, like most of them are just like fucking dumb. I can't use that word. You have to cut that. Most of them are dumb morons. But it's also because anybody can create a video essay. We all have been taught to write essays, right? But when you know the theory, doesn't know that you can successfully do it in practical form. It's very interesting you brought that up. Okay, the idea we all have been taught to write essays. We all have been taught. I wouldn't say we all have been taught to write essays. Yeah. I would say we all have written essays in exams. But we have you? Do you remember I can't remember a time in school
because in college I do. I can't remember a time in school where my teacher told me कि here's where you could have written things better. You could have written. Oh, things yeah, better. yeah, I don't remember that kind of a feedback in school at all. Okay. Definitely. Either my essays were really good and they were like no, इसको तो कुछ नहीं बोलेंगे, or the teacher did not care. No, And I know for a fact that that was not the case because my essays were terrible. गाय हमारी माता है, गाय के 2 पैर, sorry 4 पैर, 2 कान, 1 नाक और 2 आंखें होती हैं. These were my essays. मैं जब कॉलेज में था ना, स्कूल के टाइम पे तो नहीं, कॉलेज में आई हैड दिस प्रोफेसर who would like I would voluntarily go up to them and ask them to check my essays. Why? Because I really had developed a knack for writing a little bit. मुझे पसंद था to be able to put my words together in a concise and clear manner. Yeah. तो he would tell me कि like he would literally obliterate through my essays, like पूरा red pen से पूरा काट कूट के कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये कोई लिखता है. If you have written it here, why have you written it again here? Stop repeating things. Don't waste my time. पूरा ऐसे critical. Like I would submit like 7th or 8th iteration of that same essay to him, and finally like हाँ ये है. It was very frustrating, but it's a thing, man. Like people don't write as much. इतना नहीं लिखते लोग. नहीं आता लोगों को लिखना. I think I do have a natural knack to be able. You know what I have? This is what I've noticed. I can write a story in its very basic form. Intro, something happens in the middle, tie up towards the end. Climax. Yeah. Climax that just क्या बोलते हैं उसको, brings it to full circle, right? That's what climax does. The complete picture. Yes. I know how to do that. ठीक है. Now I don't know how good I am at that because I've never, as I said, like I haven't had a teacher who have been able to be like, hey, look at this, you know. But I know that I can do that. But also like going back to the main topic and just not going off of a tangent. Man, we would love to go off on tangents. Oh, man. It would be that's amazing. I think we should like do a live stream. We should do a live stream where we just talk and see people and show people how far off in a tangent can we go. We can go. Yeah. Let's do it 8K. Yeah. Let's do it 8K subscribers. Do it 8K subscribers. Let's do a person behind the persona live stream. You guys get to see how far off Ocus and me can go in tangents. Like, चल रही है conversation. चलती जाएगी. पर हाँ. हम लोग का टॉपिक था कि हाँ जब लोग बड़े चैनल तुम्हारा थोड़ी कॉपी करने लगेंगे, तो देखो भाई सीधी सिंपल बात है, क्रेडिट से तो लंड कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, वो देते रहे क्रेडिट, तुमको मिलता रहेगा क्रेडिट. ऑडियंस भी आ जाए भगवान करे बहुत खुशी से, ऑडियंस बोलेगी भग माँ के लोड़े, ये बोलेगी ऑडियंस. ठीक है. नहीं भाई देखो सीधी सिंपल बात है, बॉलीवुड नहीं है ये. ठीक है. बॉलीवुड में मिल जाती है तुम्हें मूवी, नेपोटिज्म चल जाता है बॉलीवुड में. ठीक है. पर यूट्यूब पे तुम्हारा चैनल अच्छा नहीं है, नहीं देखेगी वो जो ऑडियंस. और अगर तुम्हारी ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं है तो कितने ही हो जाओ बेटा, कितने ही डाल लो बॉटम टेक्स्ट टॉप टेक्स्ट, ठीक है, नहीं देखेगी ऑडियंस. यूट्यूब पे ये भी तो हो जाता है. आई थिंक आई एम नॉट, यार मैं शायद ज़्यादा ही स्पेकुलेट कर रहा हूँ, बट बोलो. यूट्यूब पे इंडिविजुअलिटी कंज्यूमर की ज़्यादा है. बिल्कुल. मैं बता रहा हूँ क्यों. मैं बहुत सिनेमा देखता हूँ एंड आई यूज्ड टू लाइक गॉबल थ्रू सिनेमा, एंड व्हेन आई से सिनेमा आई मीन एक्चुअली जाके थिएटर में जाके देखना. ठीक है. Oh, we love. You know the idea of peer pressure stays in cinema halls, like literally not peer pressure, like the people around you. Yeah. अगर ऑडियंस हंस रही है, तुम हंस रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्यों हंस रहे हो, बट तुम हंस रहे हो. इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन सिनेरियो. ठीक है. एंड यूट्यूब पे वो नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रोल ज्यादा है. तुम्हें अगर हंसी नहीं आ रही, तुम्हें हंसी नहीं आ रही, तुम नेक्स्ट वीडियो पे जा रहे हो. ठीक है. अगर यूट्यूब को पता होता कि हाउ टू मिमिक द peer pressure ऑफ वो पियर वाला सिनेरियो, वो साइकोलॉजी अगर मिमिक कैसे करना है, यूट्यूब उसको बहुत पहले कर देती. पता है क्यों? बिकॉज दैट वुड एंश्योर यूट्यूब गेट्स मोर बिजनेस. पर वो नहीं कर सकते उसको. वो थोड़ा बहुत किया जा रहा है इन लाइव स्ट्रीम से एंड ऑल्सो लाइक what like I was watching this Netflix show called Social Dilemma. Have you watched it? I just saw it. Yeah. So what see how they keep recommending you the same shit that you will watch.
Wow, man, that just like Change the showed me perception the villainous side of YouTube. Same. I was like, God damn. And then, भाई, since क्या then कर I've been like, okay, I'm not gonna carry my phone all around. So now I've started to leave my phone, get away from it. But what can we do? What can we do as a the thing is now I'll tell you, not a lot of times we aren't even like, as a small creator I wouldn't even be angry, and this is like very personal, as I cannot speak for everybody, but I won't be even angry that you copied and you're bigger than me. Many times I might be even like flattered that you copied me, but it comes with I would like from if it comes from a sense of acknowledgement. In India, like privately in the DMs kind of a scenario. Anything like that, man. Privately, openly, or not even reaching out to me. Just leaving a hint even can sometimes makes like our day. You know. But I've noticed this a very repetitive scene in India, and especially in India, is that people steal a lot more and then acknowledge a lot less. And I'm not meaning, I don't mean this steal term in the great artist steal, bad artist copy, wo jo hai na. I don't mean it in that sense. I mean in literal stealing sense. And this is a very repetitive thing that I've noticed. I know, like at this point, and I'll tell you one more thing that bothers us. Like ये ना competition YouTube में है, not competition YouTube में, internet पे देखो. एक समय था जब प्लेटफॉर्म ही नहीं था लोगों के पास. कुछ गिने चुने फिल्म स्टार्स थे, इनके पास प्लेटफॉर्म था, एंड वी एज ऑडियंस फ्लॉक्ड टुवर्ड्स देम बिकॉज वी फाउंड देम रिलेटेबल. Because we've been told as kids that, oh, you should speak your mind out, you should, like in schools, and like, oh, go off on stage, talk to people and all this shit, and we were made believe that we are all performers, and when we grow up everybody will listen, and sooner or later we discovered that no one gives a shit. ठीक है. So we flocked to these stars because they had somebody to listen to, and we found that relatability from them or through them. But market is a market. If there is a demand, market will come. Hi beta, kaise ho? Ye lo. Market is that cool chacha of yours. Kya chahiye? Ye lo. Sometimes too cool that provides drugs as well. But so market said everybody wants to be a performer. Everybody. Okay, ye lo. तुम सब परफॉर्मर हो, सब देखो एक दूसरे को all the time. ठीक है. So that's what happened. And तो अब क्या हो गया, कंपटीशन बन गया है बेटा कट थ्रोट, क्योंकि जब सर्फ परफॉर्मेंस होते हैं ना तब कोई परफॉर्मर नहीं होता है, क्योंकि सैचुरेशन ही इतना आ चुका है कि बेटा अगर तुम स्टैंड आउट नहीं करोगे तो यूट्यूब भैया बोलेंगे, यूट्यूब भैया तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऑडियंस माता बोलेगी ये ले गांड में बम्बू डाल लो. ठीक है. एंड समटाइम्स ऐसा भी तो होता है यार कि लाइक फॉर एग्जांपल इट समटाइम्स इवन दो तुम जितना भी टैलेंटेड हो जाओ दिस दैट इट जस्ट डजंट, द लक जस्ट डजंट वर्क इन योर फेवर. वो भी तो होता है. मेरा थोड़ा लक से थोड़ा मेरा गलत अलग ओपिनियन है लक पे. लक है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है. लक इज लाइक, लक क्या है, डाइस घुमाई आ गई, हाँ ये हो गया लक. लेकिन तुम डाइस घुमाते रहोगे तो एक ना एक बार तो आ ही जाएगी. हाँ 6 पे गोटी खोलनी है, 6 पे गोटी खुलेगी. लाइफ क्या है, लाइफ है गोटी घुमाते रहो बेटा, कभी ना कभी तो खुलेगी. जिस दिन खुल गई मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड टू जस्ट. हाँ वो ज़रूरी है बहुत कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड. और तब तुम नहीं बोल सकते कि आप बोलते हो कि हाँ भाई मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, दिस दैट. बेसिकली व्हाट आई सेड 3 years ago. That's why I am very, like, you need to be self confident in yourself. That's why I'm very, be your biggest supporter. I keep on saying that to the boys. Basically be prepared. Yes. कभी भी हो सकता है चेंज. अगर तुम कंटेंट डाल रहे हो then you have to be prepared. बिल्कुल. क्योंकि भैया ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर मोर राफ पे अभी डिसाइड करूँ कि मैं अभी एक हफ्ते कंसेक्यूटिवली 7 दिन वीडियो डालूंगा, ठीक है, और 7 दिन में मेरी वीडियो ब्लो अप कर गई, उसके बाद मैं नहीं बोल सकता कि हाँ बेटा अब तो 3 महीने बाद डालूंगा. तब बेटा तूने खोया है भाई चांस. ये तो तुमने खोया है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल. मैंने फिर आके रोते मत फिरना कि भाई चांस नहीं मिला. मैंने मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखी थी. मिस्टर बीस्ट बोला था मेरे को, ये नए यूट्यूबर्स आके बोलते हैं मैं 2 साल से कर रहा हूँ हैं, मेरी वीडियो नहीं चल रही है यार.
वो बोलते ये रूकी नंबर्स मेरे को मत पता, जब ही शुरू हुआ था तब से कर रहा हूँ, पिछले 2 साल में ब्लो अप हुआ हूँ, ये तो मुझे बता भी मत दो. And I've been preparing ever since. And what happens, like the reason I say कि be confident in yourself and be your biggest fan, because जब नहीं खुल रही गोटी तो लोग बोलेंगे भाई तेरे लिए नहीं है, छोड़ दे. बोल लेंगे, हमको भी ट्वीट आते रहते हैं कि नहीं है भाई तेरे लिए छोड़ दे, नहीं हो रहा ब्लो अप छोड़ दे, या ये कर ले वो कर ले. ऐसा भी तो होता है, बाकी लोग ब्लो अप कर जाते हैं और दे क्रॉस यू बिल्कुल. एंड दे गो समवेयर एल्स एंड दे ऑल स्टॉप टेकिंग यू एज सीरियसली एज दे यूज्ड टू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. Yes, राइट. yeah. And then when you suddenly blow up, then they come back. And fuck these people. Maybe because I don't know, I don't fuck with that. Like, if you aren't here in my worst times, fuck you. If you left me, fuck you. I don't fucking care. I don't need your shit. And like, I've seen this happen a lot of the times. And KSI said something very cool about like, yeah, you became celebrity. Fuck this tag, this shit. I don't even need it. This celebrity tag isn't even made for me. I don't fucking care of it. I'll be bigger than that as I am. And he is very preachy for the, not preachy would be the right term, but he's very for the like, I am a celebrity. I don't need you to acknowledge me. I don't need XYZ numbers for you to acknowledge me. I am fucking that. I am bigger than that. That's why, like, you know what I'm trying to say. But we went on a tangent once again. Man, yes, but बम्बू डाल देगी ऑडियंस तुम्हारी, यहाँ पे थे हम. तो बेटा अब कट थ्रोट कंपटीशन तो है, और तुम नहीं करोगे इनोवेट तो लौड़े लग जाएंगे. तो और ये फ्री मार्केट है, और फ्री मार्केट बोलता है बेटा करो इनोवेट, और करते रहो और करते रहो और करते रहो. अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि ये फ्री मार्केट है. हाँ बिल्कुल. अगर फ्री मार्केट ये नहीं होता, I'll tell you what is not a free market. The example, Bollywood is not a free market. Yeah. As much as we like the fairy tale idea of Bollywood ki oh ho mast kya baat hai, stars this that great, it is not a free market. You don't believe me, just look at the number of people who are getting onto trains right after Shah Rukh Khan from Delhi to Bombay. Okay, bhar ke left right and center, theek hai, and see how much he struggled in 1 year and come back. Yeah, theek hai. Yeah. If you look at, it's very interesting you say that, because Shah Rukh Khan, when he was asked in his initial interviews, like he was like, I just came for 1 year and I decided कि 1 साल करूँगा, उसके बाद I'll just go back or something like that. But he always said कि, like he was always prepared. The guy had theater background. The guy was ready. He started from like rock bottom. He was ready. Yeah. And he took the chance. Yeah. Like there are bigger stars at that point of time. Amir Khan was like something else when Shah Rukh Khan came in. He was like a mega star. Shah Rukh Khan was nowhere to be around, right? Yeah. He just dominated through and through. He was prepared. Mindset ही है ऐसे उसका. Have you heard any bad things? No. Any other celebrity says about Shah Rukh Khan when he came from the bottom? Yeah, it's very, very interesting. I fuck with Shah Rukh Khan a lot because like I think everybody does. Like if you hate Shah Rukh Khan, you really need bro, he doesn't care make good movies. Okay, that is your opinion. Maybe he doesn't. I just like as Shah Rukh Khan, I am fascinated with him because like I don't know, I just resonate with him a lot. Came from Delhi, was prepared, no background in Bollywood, no nothing, dominated. Fucking killed the game, richest actor in the world right now. The fucking Hollywood richest actor in the world comes from Bollywood. A guy from Delhi. That's insane, you know. So, but he was prepared. That's the thing. And when you're... So, market says, beta, innovate. Correct है. Market सही बोलता है. Innovate करेगा तभी चलेगा. Innovate नहीं करेगा तो time stops for no one. You stop. The moment you stop, time will pass you. Adapt या perish. है कि नहीं? But as humans, मैंने मेहनत किया ना स्टाइल पे, साला 2 मिनट तो चैन की सांस लेने दे. मैंने बनाया बेंचोद उठा लिया कोई, फिर बनाया फिर उठा लिया कोई, फिर बनाया फिर उठा लिया फिर बनाया. एंड दिस इज नॉट लाइक फर्स्ट टाइम मेरा कोई बड़ा यूट्यूबर कॉपी कर लेता है. ठीक है, अगर तुम लोग कोई भी बच्चा देख रहा है या कोई भी मेरे साइज का चैनल देख रहा है, तुम लोग ने नोटिस किया ही होगा कि यार ये बार बार वाला अकरेंस सीन है, बार बार आ जाता है. ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा लोग इतने हैं, कंटेंट बहुत कम है. और अब इनोवेशन का सीन ऐसा है, इंस्टेड ऑफ लेयरिंग अपॉन योर सेल्फ
or layering upon anybody else. People are just, of course there is amount of layer. जो पिछले 5 साल पहले का यूट्यूब था इंडिया और अब जो है 5 साल बाद वो वाला सीन नहीं है. पीपल हैव चेंज्ड, बिल्कुल सही बात है, पर इट हैज़ चेंज्ड इन मासेस. समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? एक बंदा ऐसे ऐसे नहीं हुआ है. इट्स लाइक खूब सारे गड्डियाँ जैसे ईंटों को रखता है ना, 1 2 3 4 4, एक उसके ऊपर 3, उसके ऊपर ऐसे एज अ पिरामिड, ऐसा चेंज हुआ है. ठीक है, तो अब ये हो जाता है इमोशन, ह्यूमन एज एन ह्यूमन इमोशन. हम बोलते हैं यार बहन के लोड़े अभी तो किया था यार, लेने देना सांस, अब मैं फिर से फिगर आउट करूं, तो तब आदमी गुस्सा करता है. एक चीज मुझे उससे रियलाइज हुई कि यार तुझे लगता है कि लोगों में, क्रिएटर्स में एक इंट्रिंसिक डर है कि मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, कुछ फायदा नहीं होगा उसका. बिल्कुल ट्राई समथिंग व्हिच इज ट्राइड एंड टेस्टेड. बिल्कुल वो डर रहता है. और नॉट ओनली दैट कि मेरी ऑडियंस ना खो दूं. राइट. तो ये डर से कैसे दूर भागे यार, ये डर कैसे हटाएं भाई? यही है ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है सोल्यूशन इसमें है, डर भगाना. हाँ, मेरे को लगता है कि क्रेडिट देना इज अ नाइव सोल्यूशन. वो डर भगाना कि मैं खुद का कुछ निकाल सकूं, फिर वो मैं कुछ अटेम्प्ट कर सकूं डिस्पाइट डिस्पाइट द रिस्क ऑफ लूजिंग. रिस्क ही है ना एक तरह से, मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, बहुत बड़ी रिस्क है भाई गांड फट जाए. यही स्टार्टिंग, है वही क्या स्टार्टिंग में क्या तेरे को बोला था ना, रिस्क है एट द एंड ऑफ द डे. हाँ बिल्कुल है. ठीक है, ये डर रहता है बहुत. ये तो भाई ये वाला तो लाइफ वाला सीन है भाई. मैं डरता हूँ, मैं तेरे को एडमिट करके बता सकता हूँ, मैं मोर्रा पे डरता हूँ बहुत. मैं भी डरता हूँ यार. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 3 वीडियो अच्छे आ गए, परफॉर्म कर लिए, अब मैं चौथा अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे से तो नहीं होगा. ये डर रहता है मेरे दिमाग में. बिल्कुल you'll fall. सबसे बड़ा मैं तेरे को बताता हूँ, ये ऋषु का है कितना, ऋषभ का है. एंड ऋषभ हर वीडियो वायरल जाती है उसकी, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. दैट शिट ही क्रिएट्स ना, वो एक्सपोनेंशियली वायरलिटी क्रिएट कर रहा है बच्चा. समझ रहे हो? पर गांड फटी में रहता है वो गीगा चैड, अग्रीड, पर गांड फट जाती है. जयेश, वन ऑफ द फनीएस्ट डूड आई नो इन द ग्रुप, बाय फार द फनीएस्ट. जयेश से फनी, ऋषु से फनी बाय माइल्स. वीडियो गिरती है बीटी सीन्स, हम लोग बैठते हैं बीटी सीन्स, मेरे को भी होता है. और ये तो बहनचोद ऐसा है ना, कितना डर तो अपना बायोलॉजिकल है ना राव यार. सीन ही यही है बहनचोद की, हार्ड वायर्ड है. और तुम माँ की चूत कर लो ट्राई, ये ना एंसेस्ट्री से आ रहा है तुम्हारे जीन्स में, बहुत पहले से आ रहा है ना. क्योंकि अगर तुम डर इसलिए पैदा ही हुआ है ताकि तुम्हें जिंदा रख सके, ठीक है, पर आई थिंक इतने सालों से हमको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है वो, कि अब हार्डवायर हो गया कि तुम ऐसी चीज़ों में, सच एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू मेक समथिंग ऑन यूट्यूब. पहले तो डर होता था कि मैं रात को अगर जगा नहीं रहा तो आके कोई खा जाएगा मुझे, ठीक है, वो होता है, दैट इज जस्टिफाइड. ठीक है, मैं अपने कमरे में इन द सिक्योरिटी ऑफ माई लाइफ अगर मैं वीडियो डालूँ इंटरनेट पे और वो नहीं चले, ये कैसी एंग्जाइटी है यार. और तू सोच, मैंने ये बहुत बढ़िया चीज नोटिस किया, ये ना इंडियन सोसाइटी आके कर देती है बहन की लोड़ी मल्टीप्लाई. ये अपने को ना, तू मुझे बता दो कोई टीचर जिंदगी में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुमको बताया होगा कि लिव इन द मोमेंट. हाँ, 10वीं स्कूल कर रहा है, 10वीं में अच्छे मार्क्स लाओ, 10वीं विल डिसाइड योर फ्यूचर. भाई 10वीं विल डिसाइड योर फ्यूचर. उसके बाद सुनो ऐसा चलता है, 10th कर ले बेटा लाइफ सेट, 12th कर ले बेटा लाइफ सेट, कॉलेज कर ले बेटा लाइफ सेट, प्लेसमेंट कर ले लाइफ सेट, अब तो शादी कर ले लाइफ सेट. ठीक है, ये चल रहा है. ठीक है, और मैं तो उस स्टेज पे पहुंचने वाला हूँ बहुत जल्दी. मेरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है. मेरे को मेरी मम्मी बोलती, मेरा कॉलेज खत्म हुआ, 2 डिग्री आ गई मेरे पास, ठीक है, मेरी मम्मी बोलती तू 1 साल बाद ऑफिस के तो कुछ पढ़ेगा कुछ MBA करना है. मैं बोला कितनी, क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, आपको पता भी है मैं क्या करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ. मैं एक दिन पूछता मम्मी आपको पता है मैं क्या करता हूँ ऑफिस में, ना कुछ कोडिंग डिकोडिंग करता है. मतलब डिकोडिंग क्या होता है, मैंने डिकोडिंग आज तक नहीं किया कुछ. लेकिन हाँ वही तो कुछ करता है, बचपन में कंप्यूटर के साथ खेलता था, अब तो अच्छा ही है ना, कंप्यूटर तुझे पसंद है.
मैं बोला मम्मी माय मदर थॉट दैट आई वुड डू ग्रेट इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज मैं बचपन में हैरी पॉटर के गेम खेलता था, ठीक है? तो समझ रहे हैं कितनी फ्लॉड है, कितनी फ्लॉड है. यस, एक नो नॉट बेटा ये कर ले ये हो जाएगा, ये कर ले ये हो जाएगा. तो अपन पैदा होते हैं, माँ बाप बोलते हैं. और देखो, आई लव माई पेरेंट्स, राइट, I love my parents. I will take a bullet for them. And I regret this that I take the bullet for them. Fucking, I regret that I love them so much I think the values they provide are great. Yes. But वो भी clueless है. 2020 में decisions, financial decisions and like तुम्हारी जॉब, तुम्हारी करियर डिसीजंस, वो क्या लेंगे यार? टाइम ही अलग है. बिल्कुल बिल्कुल. Like your parents are not preparing you for the future. Your parents are preparing for the future that they thought would exist. But future exponentially grow होता है. And शायद ये पता नहीं है सबको. और मुझे को जस्ट अभी ये रियलाइज हुआ, ऐसा तो नहीं है कि मैं रिस्क से इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बोला था कि रिस्क फ्री रहो, go for the things which are mainstream, which have been tried and tested, they always work. वो मेरे दिमाग में अगर साइकी में घुस चुका है इतना डीप कि मैं रिस्क से डर रहा हूँ. बिल्कुल, ये तो है, ये मैंने नोटिस किया. अभी रिसेंटली ये मैं कन्वर्सेशन बताता हूँ तुम लोग को ऑडियंस. मेरा पापा है, मेरे डैड प्रिंसिपल, ठीक है. बड़े बेटे को इंजीनियरिंग में डाल दिया, ठीक है. बड़ा बेटा अपना किया जो भी है, और जो भी कजिन्स थे उनको भी इंजीनियरिंग में डाला, ठीक है. वेरी मिडिल क्लास फैमिली. सुबह 9 बजे उठ जाने, शाम को 9 बजे सो जाने का, ठीक है. 9 पे डॉट पे सुबह 5 बजे उठ के अपना चाय बनाने का, 6:30 तक टिप टॉप रेडी, ठीक है. वाइफ नाश्ता देगी, थोड़ा इधर उधर घूमा घामा, निकल गए जॉब पर. ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है. वेरी डिसिप्लिन. जो एक बनाए वही चलो, समझ रहे हो. उनका छोटा लड़का, ठीक है. इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मेडिकल नहीं करूँगा, मैथ्स आती है सबको, नहीं आती मुझे, समझ रहे. हर चीज़ में डांस करूँगा मैं. मेरे डैड नेवर केम, एंड आई एम नॉट एंग्री एट हिम इन एनी सेंस, नेवर केम टू एनी ऑफ माई स्पोर्ट्स shows. And I was a very good athlete. I was into like 100 meter, 200 meter running, represented my school in state level, and was almost going for national level. The very good dancer, amazing dancer, awarded best dancer in Navi Mumbai by Times of India in 2013, 7 years ago. Still have that paper, still have everything. Never came to any shows. क्या कहते हैं? Because for him, according to him, this won't work. Many people have tried, few of them have succeeded, doesn't work. I told my parents I wanted to YouTube. My mom said, हर कोई कर रहा है, तुम नहीं कर पाओगे. क्योंकि हर कोई किया, बहुत लोग किए, बहुत लोग फेल हो गए. अभी कल की बात है जब मैंने उनको बताया कि विलन से स्पॉन्सरशिप आई है, उनको ये सब दिखाया मैंने, क्या कहते हैं, पैकेज. लाइक तू 10,000 कमा के खुश है क्या? एंड आई एम सेइंग कि मैं 10,000 नहीं कमाता, पर तू 10,000 कमा के खुश है क्या? मैंने पापा को बोला कि पापा, मतलब इससे पहले थोड़ी सी लड़ाई हुई थी मेरी पापा से कि भैया वाज डूइंग समथिंग एल्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, right? During this side, he's a civil engineer, and his site is closed down. So now, right now, he's not getting paid anything. His site is closed down. So dad is like, and my brother is just doing some random, I don't know exactly what he's doing, but he's working with his friends on some like call center type stuff. Not exactly call center, but he works a lot on phone, talks to a lot of people, maybe convinces them. I haven't asked. He does his own thing. I just haven't asked. My father says कि तू ये कॉल सेंटर वाली जॉब करके क्यों खुश है, टू माई ब्रदर. एंड आई इमीडिएटली इंटरफियर्ड एंड वाज लाइक, यू आर हिज पेरेंट, यू आर नॉट अलाउड टू से ये मत कर. यू एज अ पेरेंट शुड से बेटा जो करना है कर, गिरेगा ना तो मैं हूँ, 1-2 साल कमा के खिला दूंगा. तो बोलते हैं माई फादर ऑब्वियसली अ फ्लॉड पर्सन, स्केयर्ड फॉर हिज चाइल्ड. बोलते हैं मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा मैं. लाइक वेरी ट्रू, करेक्ट. टेल दैट टू हिम, टेल दैट टू योर किड दैट यू हैव 4 years to do what you want. After that, I won't be able to feed you. I won't have this money that I have coming in every single month. तो बोलते हैं, ये मैंने उनको बोलते ये आई एम टेलिंग दिस टू यू राइट नाउ. मैं बोला मेरा सेट है, मेरा मत फिक्र करो, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ. एंड
ही सेज कि तू 10,000 रुपये कमा के खुश है क्या? तो बोलता हूँ डैडी 19 साल का हूँ, नज़र घुमा के देख लो, 19 साल में ऐसा लड़का मिल गया ना तुमको समझ, तब तुम ऐसे बोलना, ठीक है? ये 10,000 अभी कमा रहा हूँगा ना तो मेरे को 10 गुना करने में ना 1 साल नहीं लगेगा। ऐसे मैंने उनको खोल के, आप भी कमा, मैंने फिर ऐसा बोलता इतने 50 साल की उम्र में इतना कमा रहे हो, खुश हो? नहीं ना, तो इससे खुशी मेजर नहीं होती है। तो ये बोलना बंद कर दो कि ये कमा, वो कमा, इतना कर, ये कर, क्योंकि गेस व्हाट, तुम भी नहीं खुश हो और हम भी नहीं खुश हैं। सो ये कन्वर्सेशन हुआ था मेरे पेरेंट्स के साथ, एंड दैट्स व्हाट देन आई डिस्कस दिस विद माय गर्लफ्रेंड who's a philosophy, and that's where this came from, that nobody teaches you to बहन के लोड़े live in the moment ना यार। कभी तो माँ के लोड़े कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वो चीज़ करूँगा, मैं ये learn to live, be happy in the moment, because guess what, my love, if you're not happy at 10,000 rupees per month, you won't be happy at 1 crore rupees per month. You won't be, I know, because Maslow's theory of hierarchy, your brain is hardwired to create more problems. Maslow's hierarchy of needs होती है वो, उसमें होता ये है कि थर्ड वर्ल्ड नीड्स होती हैं, सेकंड वर्ल्ड नीड्स होती है, फर्स्ट वर्ल्ड नीड्स होती हैं, and then you reach to self actualization and next self actualization needs. मतलब और obviously हम तो as humans हमको तो चाहिए कि हम अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो चढ़ते ही रहना है, जब तक सीढ़ी खत्म नहीं हो तो चढ़ते रहना है, which is very obvious क्यों है वो हमारे दिमाग में hardwired, because that's what we have been doing for years as in I'm talking about hundreds and hundreds of thousands of years, if not millions. हाँ, as a different species, of course. Yeah, true. काफी समय, it's basically one of the basic evolutionary traits which we have, कि चढ़ते रहना है, डोमिनेंस हायरार्की में चढ़ते रहना है और पुश करते रहना है, ठीक है? दैट इज व्हाई वी हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग. बिल्कुल. बट यार ठीक है यार, मतलब क्या हो जाएगा अभी? क्या मुझे पापा बोल रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, पापा बोल रहे थे हाँ अभी तू MS करने जा, अमेरिका जा, व्हाटएवर दिस दैट. ये कोरोना सिचुएशन हो गया एंड डैड वाज लाइक तू बस अब घर आ जा, अब तू बस घर आ जा और कुछ नहीं, तू घर कब आ रहा है? क्योंकि डैड वाज लाइक छोड़ वो सब, बाद में जाइए, कोरोना सिचुएशन है. मैंने बोला कि अगर मैं अगले साल या फिर अभी नहीं किया तो मैं करूँगा क्या? व्हाट विल हैपन? तो डैड वाज लाइक अरे देख लेंगे हम, विल सी, विल फिगर समथिंग आउट. तू घर पे बैठी हो, मुझे पापा बोले तू घर पे बैठी हो यूट्यूब करियो. मेरा दिमाग खराब हो गया, लाइक पापा बोल रहे हैं मुझे घर पे बैठ के यूट्यूब कर, क्या बात है भाई? क्योंकि आई थिंक ही बिकेम अ बिट कॉन्फिडेंट ओवर द लास्ट 2 years कि हाँ बेटा थोड़ा तो कुछ कर लेगा अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बैलेंस कर लिया ना हमने लाइफस्टाइल को हमारे. Now you know, now I think a lot more audience will understand where this the self confidence and being. और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, बिकॉज ओकस तो 19 साल का है, मैं फिर ही बता सकता हूँ ये बात, ठीक है? जो लोग सारे 12 से लेके 12 साल की उम्र से लेके 25 क्या मतलब 30 तक भी बोल दूँ, 30 तक के हो भाई, क्या यार किस चीज़ के लिए तुम डर रहे हो? कल थोड़ी मर जाओगे यार, तुम चिल मारो ना, थोड़ा आराम से भाई बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. आराम से रिलैक्स मारो, एंजॉय करो. जब स्टार्ट करे थे ना वीडियोस बनाना, तब क्यों वो ढूंढो क्यों बना रहे थे तब. मैं तो मोर्रा पे वीडियोस वैसे ही डालता हूँ उस हिसाब से. जब मैंने मोर्रा पे जो वीडियोस डाली हैं भाई मेरे दिल से डाली है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. और मैं सबसे पहले पता है किसको दिखाता हूँ मेरे मोर्रा पे वीडियोस? मम्मी को. सीधा स्ट्रेट अप पहले मम्मी को दिखाएंगे, फिर पूरी ऑडियंस को दिखाएंगे. व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, मम्मी देखती है, मम्मी दूसरे ग्रुप से भेज देती है मेरे बेटे ने बनाया है. मेरी मम्मी भी ऐसी ही है भाई. बेस्ट फीलिंग होती है यार वो, बहुत उसको कम. भाई दुनिया में 1000 कमेंट भी आ जाए ना कि क्या फाड़ वीडियो है, फाड़ मैटर नहीं करता, मम्मी ने बोल दिया ना बस हो गया, मेरा जिंदगी मेरा खत्म भाई, मेरा हो गया भाई, मेरी वैलिडेशन वहीं पे खत्म है भाई. तगेश की वीडियो देखी थी मेरी मम्मी ने क्या बोला? बहुत गुस्सा की थी तगेश पे. ये कितना चिड़ा हुआ है तुझसे, ये देखो शीनू तुम कुछ तो सही कर रहे होगे, लोगों के दिमाग में कितने समय तक रहते हो तुम, ऐसा सब बोल रही थी. मैं कुछ कमेंट कर दूं क्या, मैं कुछ कमेंट कर दूं, ऐसे मेरे को बोलती है. मैं बोला नहीं मम्मा आप कुछ मत करो, मैं लोगों को बोल दूंगी कमेंट कर देंगे वो भी. मेरे को लग रहा है YPM ब्लॉग्स के पापा मम्मी ने भी यही सोचा हुआ, इसलिए केस ठोक दिया कैप्टन जान. लाइक हमारे बेटे के बारे में बुरा बोल रहा है, इस पे केस ठोको, अभी ठोको, फेक केस ठोकेंगे. It's so weird. Indian parents, it's like they will do it.
तेरे पे ये कर, रुक मैं करती हूँ. But when it comes down to this, like you need to live. But that's also fine. I think Fine, yeah, of course. पेरेंट्स बिकॉज दे बेचारे, जैसे हम लोग ने पहले भी बात की है, पेरेंट्स को भी बेचारों को नहीं ही पता है यार, हाँ. नहीं पता And उनको. that I'm sure like it also comes from a place of भाई we have to make sure that our kid doesn't suffer from delusions of grandeur. Yeah. ठीक है. ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को लगा कि भाई हम तो भैया झंडे गाड़ देंगे जिंदगी में, आज तक घर के बाहर खेलने नहीं गए, हम तो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ जाएंगे भाई. ऐसे कैसे सपने भाई. Yeah, I think it comes from this, like when every child is a kid, every parent thinks it's like he's special, yeah, she's special. स्पेशल. चलो अंकल को डांस करके दिखाओ, ये वो देखो कितना अच्छा डांस करती है. बट एज स्लोली यू प्रोग्रेस, यू स्टार्ट सेइंग, अयो व्हाट द फक, I don't think this motherfucker is that special, you know. And that self-doubt, that doubt just keeps Man. increasing. वो प्रोजेक्ट हो जाती है प्रेशर. बिल्कुल कि मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं हूँ स्पेशल, और कोई नहीं सोचता. मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, ये लाइक सर्कल जग का काइंड ऑफ सिनेरियो हो गया यार. लाइक मेरे पेरेंट्स सोचे मैं स्पेशल हूँ, पेरेंट्स सोच रहे कि मेरा बच्चा मेरे पे डिपेंड कर रहा है. हम तो अब भाई अलग ही टाइप है, दोनों एक दूसरे का प्रॉपर सर्कल जग चल रहा है. ठीक है. I mean, it obviously comes from a place of love. That is Definitely. for sure. Yes. But यार पता है, एक हमारे ओडिया में एक कहावत है, मैं अभी ओडिया में तो नहीं बता सकता, बट इट्स लाइक मेक योर किड योर फ्रेंड आफ्टर द एज ऑफ 15. ठीक है. तुम्हारे बच्चे को अपना दोस्त बनाओ, हो गया भाई. जब बड़ा हो गया वो, बाप का जूता बच्चे को फिट आ जाए, तब वो तेरा दोस्त है, तब वो तेरा बेटा नहीं है. और हाँ. वो वाला सीन. मेरी अच्छी वाइब बैठ, अब मेरी पापा के साथ वॉट एवर लाइक इशूज आई हैड विद माय फादर, मेरी अब वाइब अच्छी बैठ जाती है पापा के साथ. मेरे पापा पहले बहुत गुस्सैल थे, बहुत गुस्सैल थे. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड अ वेरी बिग फाइट. आई हैड लेफ्ट द हाउस गुस्से में. आई एम अ वेरी स्टबर्न किड, इफ यू डू नॉट नो गाइस. वेरी स्टबर्न, एग्जैक्टली opposite of my big brother. He's a very I'll look into it. Yeah. I'm like, no, I won't. How old I were you? decide. How old? 2 years back. Man, I was around like 8-9. You know those cycles we have, छोटे वाले बच्चों वाले cycles. Yeah, tricycles. हाँ. I was like 7 or 8. Okay. I got so angry. Joint family में रहता हूँ, ठीक है. तो हमारा एक लंबा सा कोर्टयार्ड है. I still remember. मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के. उस कोर्टयार्ड के तो साइकिल लेके जा रहा हूँ. 15 मिनट लग रहा है कोर्टयार्ड खत्म करके मेन रोड तक पहुंचा मैं. और मेन रोड पे भी किसी अंकल ने देख लिया, पापा किसी दोस्त ने, अरे बेटा तुम यहाँ क्या, चलो वापस चलो. और मैं कुछ बोलता भी नहीं, छोटा बच्चा हूँ मैं. अरे ये क्या बाहर क्या कर रहा है. बाहर चला गया था. हाँ, ट्राईसाइकिल लेके बाहर चला गया था. ट्राईसाइकिल लेके एक बच्चा, एरिया वेयर कार्स आर पार्क्ड, ठीक है, हॉस्पिटल के पास. ठीक है, हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उस गली में बच्चा ट्राईसाइकिल लेके मेन रोड तक जा रहा है. लाइक इमेजिन व्हाट अ फ्रिकिंग हिलेरियस इमेज दैट वुड बी. लंबे बाल यहाँ तक, ठीक है. वो पिक्चर है ना मेरी, पिक्चर है ना मेरे में, वही सेम बच्चा ट्राईसाइकिल लेके रोड बस्ता पहना हुआ था भाई. भाई प्रॉपर कलरफुल बैग पहन के. भाई मैं तो जा रहा हूँ, बैग में कुछ है नहीं, बैग में 2-3 किताबें पड़ी हुई है, ठीक है, हम तो जा रहे हैं भाई घर छोड़ के. मैंने भी ऐसा किया था. एक था हमारा 2 बहुत बड़े रूम थे गाँव में, 2 बहुत बड़े रूम. तो एक था बेडरूम, उससे कनेक्टेड बाथरूम, उसमें टीवी, सब बहुत बड़ा सा बेड. वी हैड ह्यूज बेड. And then next was also एकदम huge, even bigger than this. That was a kitchen plus some कुछ ना कुछ तो था कबाड़. किचन प्लस कुछ कबाड़, ठीक है. तो मैंने क्या किया था, मम्मी मैं और आप अब अलग से रहेंगे. वो उसमें डोर था, वो डोर बंद कर दिया. ये आपका इलाका, ये मेरा इलाका. फिर मम्मी ऐसे जाली से बाहर खोल ली और किचन कुक करने लगी. अच्छा मम्मी आप वो वाला इलाका रख लेते हो, कोई बात नहीं, आप उधर कुक कर रहे हो, मैं इधर रह लूँगा, आप उधर ही रहना, ठीक है. और फिर मम्मी इधर आ जाए, मम्मी गाय को सुने, मम्मी बोली बकबोस फुड़ी के. तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, आई रिमेंबर. Man, one thing completely out of this topic, but we're gonna close this now. We went on a complete tried to hold it back, but like we could not. But okay, you should do your childlike voice in your videos, man. It is very funny. नहीं अभी जो तूने किया जैसे बात कर रहा था नॉर्मल वाले. अच्छा मम्मी आप वहाँ पे रहना, मैं pretty good man. अबे गुड़वा साउंड करता हूँ क्यूट से. लोग नहीं भाई क्यूट साउंड करता है honestly. लोग कमेंट कर देंगे बाइला भोसड़ी का. बाइला क्या होता है? बाइला चलो ये तू क्या कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है यार मुंबई में? I don't know this vernacular. बाइला is basically well it's gay but in its original term was like somebody who cannot, who's like not masculine.
Oh, अच्छा. Yeah, somebody who's flamboyant. 2020 में discussions on masculinity, what describes my your God. masculinity and what does not. Yeah. इस पे तो podcast बननी चाहिए. Why बिल्कुल. don't we have this as a topic? Yeah, man. I think the solution finally comes at a place of somewhere around you taking more risk instead of going for something which is tried and tested. Because there is no other reason you would copy somebody unless it works, right? Why would you pick up things from somebody unless you've known that it works? Yeah. Yeah. Right? Yeah. But I would also say don't stop calling him out. If somebody copies you out, right, and you're like, don't hold back the emotions you will have in that period of time. And I will tell you why. If you're angry, na, let the people know that you're angry. If you want to argue. Because if you don't, na, this will stay back in you. हाँ, it's a way. तू किसको बोलेगा? किसी को भी बोलेगा क्या? जाना ट्वीट है ना, ट्वीट बहन के लोड़े. ट्विटर तो बना है उस काम के लिए. ऐड कर, माँ के लोड़े छोड़, आगे बढ़. लेकिन आगे बढ़, पकड़ के मत बैठ जाइयो. उसने मेरा कॉपी कर दिया बेटे, मिल गया तुमको, मिलेगा जस्टिस. वैसे भी इंडिया का जस्टिस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. हमको पूरा भरोसा है हमारे जस्टिस सिस्टम पे. ट्रस्ट. अभी तक निखिल वाली वीडियो वापस नहीं आई है, पर ट्रस्ट. ठीक है. Bye guys, this is the moment you will see Okas has been the funniest he has ever been. Okay, like you've never seen Okas this funny ever. मूड में हूँ आज मैं, मूड में हूँ आज. But yeah, तो ठीक है, वो सिनेरियो हो गया. That is one way of like attempting to reach a possible solution. Of like taking more risks and calling people out so that ताकि तुम्हारा mental state तो बना रहे भाई. ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हाँ सब मेरे को उठा रहे हैं, ठीक है, मैं तो कोई भी आएगा घंटा बजा चला जाएगा, ऐसा सीन ना हो. No, if not, like stand up for yourself. Never let anybody walk through you, like over you. Like. Right. Because it is gonna be detrimental to your own mental health in the future. Definitely. कॉपी से बात हुआ, अभी तगेश की कंट्रोवर्सी हुई थी भाई. Did you? So when I sent you the video. Yeah. Did you think it was on me? I don't know who this person Thagesh was pointing out to, but the dressing sense was exactly like yours. Yeah. Like ऐसे भगौड़े dressing sense खाली ओकस का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता. ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, wearing a white jacket in a summer season. That was in outdoors. मैंने ओकस का बोल रखा हुआ ये बात. ठीक है, honestly I think he's like very confident about himself in his fashion sense, but मैं थोड़ा वैसे कपड़े नहीं पहनता. ओकस मुझे बोलता रहता है, राव तुझे पिक्चर्स लेना नहीं आता. मैं ओकस को बोल देता हूँ, ओकस तुझे पिक्चर तुझे कपड़े पहनने नहीं आते. ठीक है ना, बकवास कर दो. नहीं अपन मर्च निकालेंगे तभी अपन देखते. फुल फायर मर्च निकलेगी तभी रात तू ही प्रमोट करेगा पूरे टाइम. भाई मैं तो अगर मेरी कभी जिंदगी में मर्च निकली, मैं तो खाली ब्लैक शर्ट रखूंगा. सिर्फ एक ब्लैक शर्ट, जस्ट ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स, वाइट स्नीकर्स, दैट्स ऑल. The most basic bitch you'll ever. भाई आई वुड प्रोबब्ली मेक हुडीज आल्सो, बिकॉज मैं हुडीज बहुत पहनता हूँ विंटर सीजन में, और मैं तो टेकी हूँ भी. हम तो खाली हुडीज ही पहनते हैं. बट या तूने थगेश की सो उसके बाद क्या हुआ मालूम क्या, थगेश डीएम किया मेरे को. लाइक भाई सुन, बोला मेरे को मालूम था ये डीएम में आएगा. फ्रॉम व्हाट आई नो थगेश इज अ वेरी is a sweet kind of guy. I knew this. Jayesh had his conversation with him, and it was like, so I was like, okay, cool. So he comes in my DMs like, तू जैसे बोलता है भाई सुन, तो मैंने कोट कर दिया, तेरे पे वीडियो नहीं थी, ये कोट कर दिया मैंने, और वो वही लिखा, तेरे पे तो वीडियो थी भी नहीं. And then he sent me the entire list of the people he made that video on. That he Who are these people? Irrelevant pieces of shit. Really irrelevant idiots. And I'm not laughing at Okas saying irrelevant pieces of shit. I'm laughing at Okas saying irrelevant pieces of shit. Now, if I am saying it, you know how irrelevant they are. That also. But okay, continue. But so, and I was like, then I get in a call with him. I'm like, भाई तू इधर आ. बहन के लोड़े, तू मुझे बता, तू मिलियन चैनल है, तू इन पे टारगेट क्यों कर रहा है, पहले मुझे ये बता. That was when I was gonna ask him like what kind of a justification is that, why are you making videos. तो बोलता है यार भाई ये देख, इन लोगों ने मेरे ऊपर कितनी वीडियोस बनाई हैं, एंड वो लड़के लोगों ने 4 वीडियो बना रखी है बंदे पे, थगेश पे, और ये मेरी कंट्रोवर्सी के बाद तो और हो गई होंगी, अब 8 हो गई होंगी, पर बनाई है लॉन्डो ने. ठीक है, और एंड उसके पॉइंट्स वर वैलिड व्हेन इट केम टू दीज पीपल, because I had seen their videos, I knew of them, and I was like, but
you cannot say that the video was not on me still. Mumbai के निखिल वाला, what about that? Like, yeah, मतलब kind of not exactly. I'm like, ना तू अभी sweet बनने की कोशिश कर रहा है. You and I both know, even though you won't accept that there were points on me. And you and I also know that who else you are talking about. Like, there are more people that you are not admitting that you have tried to point at. बात हुई, अच्छे से बात की, फिर I made. So that's what I pride myself in. I do pride myself in keeping it real with the camera, and it's difficult to do that, keeping it real with the camera. But I still made, because I was like, you know what, I would have appreciated as an audience had I known that there had been a conversation between the two. So I was like, you know what, I'm gonna tell people exactly what we had conversation. And so I did that in my Reddit video, but obviously due to wanting to make it concise, I had to cut a lot of part in it. But so I thought, you know what, let's discuss it here. Yeah, so he talked about that. Well, I mean, that's actually it. I kind of explained it then and there. Bigger YouTubers usually never take the risk of calling out the smaller YouTuber. You know why? Clout निकाल लेते हैं यार लड़के लोग. और what if ऐसा सिनेरियो हो कि छोटे यूट्यूबर एक्चुअली उससे बेटर हो. हुआ है ना ये. Fucking puts his hand up first. But ये तो है भाई, ये तो हुआ है, ये तो हमेशा होता आएगा. पर इसका मतलब ये है ना, ये मैंने बहुत देखा है. मेरी ऑडियंस है, मुझे संभाल के रखनी है. Nobody else is gonna have it. Please don't go. ऐसा कि बहन के लोड़े, कितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये तुम्हारी ऑडियंस के साथ, कि तुम्हारी ऑडियंस डिसएग्री ना करे, कभी कोई डिसएग्री ना करे. प्लीज बी विद मी टिल द एंड ऑफ टाइम. को बुली करते हैं कमेंट सेक्शन में भाई. मेरी ऑडियंस इतनी I actually sometimes I feel, you know what, this is a perfect balance, even though it's not, but somewhat it is. That even though it is not, I would really humbly request you, do not bully me. I know तुम लोग person behind the person है comment section में मुझे bully करने आते हो. Please stop it. अब राव is also getting frustrated by reading the comments. मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मुझे अलग से राव बोलता रहता है all the time. ठीक है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ. मैंने तो this is what ये तो तू मेरे लेवल पे पहुंचेगा ना राव, तू तो बिल्कुल ही बंद कर देगा. मैं तो गारंटी दे रहा हूँ. तू तो अभी बंद कर देगा. तू रुक जा, तू थोड़े समय रुक जा. तू तो बोले अरे मादरचोद गांड मरा है, ऐसे करेगा तू. पर मैं पढ़ना बंद कर दिया, काफ़ी कम कर दिया हूँ. इज बिकॉज जस्ट जिससे जैसे ऑडियंस बड़ी होती है ना, वो थोड़ा सैचुरेशन आ जाता है जो लोग तुमको नहीं समझते. पर वेयर वाज आई, लेट्स नॉट गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट वंस अगेन. कहाँ थे हम लोग? मेरी ऑडियंस है, मुझे रख के रहना है, हैं? तो अबे चूतिए, चिल मार. ये मुझे प्रियाल ने बोला था, सूर्या को बोला था असल में प्रियाल ने, कि तुम लोग से पहले हम लोग के साथ ऐसा था कि कोलैब नहीं करने का. ठीक, कोलैब नहीं करने का. अपनी ऑडियंस अपने पास, उनकी ऑडियंस अपने पास. एक्चुअली वेरी फनी यू से दैट. मेरी आज एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रही थी. मिशिमा तो पता है तुझे, उसके साथ डिस्कशन हो रही थी. एंड यही डिस्कशन हो रही थी कि कोलैब्स, मतलब द रफ आइडिया वाज कि कोलैब्स इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है अनलेस लाइक यू आर मेकिंग लाइक अ फन वीडियो. ये जो एक सीरियस टॉपिक पे कोलैब, आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस. व्हाट डू यू थिंक? सीरियस टॉपिक पे क्या कोलैब करोगे तुम? That's the people do not have the correct idea of collabs. Will give your video a push, but it's like everything is always going to be a double-edged sword. Not like people say collab is a double-edged sword. Literally everything is a double-edged sword. From shout-outs to literally sharing the video to collabs to making a video in itself is a very क्या कहते हैं big problem. When you say making a video, do you mean like you're using like some particular, talking about a particular YouTuber, and that can also backfire in your page? Literally a video. You making this video can be a problem. Who knows? But what about videos which are like simple, just a vlog or something, or like any story from your life? Let's talk it in a like bigger scene. If the content is about you, just about you and nobody else, it's your story. I don't think it can backfire because it is yours. It is just connected to you. I will tell you. When I said double-edged sword, you are doing your video, you're doing your video. It never succeeds. This is a double-edged sword. You're doing it. You're putting your time, the biggest money you have in the world. You're investing your time in it.
never works. That's a double-edged sword, right? There's a risk to it. समझ रहा है? So literally everything is a double-edged sword. So people need to realize that ये जो तुमको करना है वो करो. Until and unless the audience is not earned, they will not come for you. There is a reason these big YouTubers, they're 10 years on the platform. 10 years. They have made their core audience, developed it for 10 years. PewDiePie ने कभी किसी के साथ कोलैब किया अपने चैनल पे? बहुत किया. बहुत कोलैब्स किया. बट ही उसके मोस्ट अपने खुद के चैनल पे उसके मोस्ट कोलैब जैक के साथ होते हैं. जैक उसके पूरा हाँ उसका जो ग्रुप था उनके साथ करता था. पर साइड बाय साइड भी बहुतों के साथ किया है उसने. पर इट्स लाइक he realizes that a lot of people do not realize the fact of that यार बहुत important है कि थोड़ा चिल मार लौंडे और वीडियोस बना. क्योंकि तू चिल बहुत देखा है मैंने इंडिया में. बहुत साले 1 साल में फेमस नहीं हुआ, क्या कर रहा है. और इवन यूट्यूबर्स जो सपोर्ट करने चाहिए वो आके बोलने लगते हैं कि तू इररेलेवेंट है, तू ये है, तू वो है. what how you're supposed to be the guy who should be supporting me. You're supposed to be the guy who should tell me that all not like fucking numbers do not matter. Motherfucker, how are you judging people on the basis of their numbers? Don't yes, put like if you're gonna judge a person by their numbers, make sure there is a lot more to it, not just numbers. See what, like I tend to judge people on the basis of what phases they are in. At 16, 17 years old, we usually tend to go in that rebel phase. I try to see if somebody is going out of it, going in it, or wants to stay in it, or wants to get out of it. Right? I saw that when you and I had that very conversation about that wanting to YouTube for the sake of it, and or wanting to do YouTube for it. That's exactly when I saw like, okay, no, he wants to get out of it. This is the point where I should push forward my opinion. So that's why I did it. That's why like, okay, no. I mean, there are, if like you're into YouTube, एक बहुत generic सी cliched बात है कि if you want to do YouTube for the money. Initially that is not a great it can be a great motivator for some time, but after a while it won't be. Yeah. I'm sure. बिल्कुल पैसा कमाना और तुम पैसा बहुत और बेटर मेथड्स हैं पैसे कमाने के. बिल्कुल. और easier, much easier with guaranteed success. YouTube तुमको लौड़ा पैसा नहीं देगा. जो कंपनी है YouTube वो तुमको लौड़ा पैसा नहीं देगा. अब और तुम ऐसे लौड़ा बोलते रहो तो कभी पैसा नहीं देगा. बिल्कुल ही नहीं देगा. समझ गए. वो तो ब्रांड्स भी नहीं देंगे भाई. वो तो लिख के लियो में मेरे वीडियो में देख मैंने कितना बैन के लोड़े बोला है, फिर भी आया ना. बट और ब्रांड्स की भी पकड़ लेते हैं ना भाई. कल को बेटा कैंसिल हुए सारे ब्रांड्स 10 कदम पीछे, क्योंकि ये रिस्क ले चुके हैं पहले. हाँ तो सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ बहुत. तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल ऐसा भाई तो धज्जियां उड़ गई थी यूट्यूब की जस्ट बिकॉज ऑफ वन गाय भाई. लाइक तो ये तो समझ के ही ना चलो कि भाई ब्रांड से पैसे आएंगे. डेविड डोब्रिक का मुझे बहुत सही लगता है. वो सीधा मर्च खोल लिया. Zero. He doesn't make any money from YouTube. बोला हुआ है सारे demonetized. मेरे most of my videos are demonetized because I use music बाहर से. Yeah, copyright. And he's like, then why? How do you make all the money? It's like merch. Like brands. Yeah, but brands and merch. Yeah, he said that merch is his most. Logan Paul also the same thing. Yeah, he does. Logan, I think Logan Paul is on it. Dude, Logan Paul, even regardless of how much of shit people have given him, and even Jake Paul to some extent, ठीक है, regardless of whatever his content is right now, they have mastered it. Yeah. Dobrik तो ठीक है. Dobrik is very highly dependent on his squad. Yeah. Highly dependent. That is why he's not putting out videos now. Yeah. ठीक है. But Logan Paul, that guy is a freaking genius and a hustler. Big time hustler. भाई big time. उसकी तरह मेहनत कोई कर ही नहीं सकता. Great conversation. Great example. I gave a die का example. Die. वो बहन का लोड़ा सब फेंकता है और जो स्टिक करता है उसको करने लगता है.
Dude, that guy, and people always think कि they try to judge him. Initially, they try to judge him on the basis of how he behaves in front of his audience. Okay, very childish or whatever. ठीक है? Have you, like, to those people, I would go and highly suggest that go and watch Impulsive. You will know how sophisticated discussions Logan Paul is capable of. Yeah. Then you understand कि actually it is a performance. It is a performance. Yeah. तुम्हें दिखता है तुम्हारी आंखों के सामने and तुम्हारा दिमाग फटता है उसमें कि भाई कौन है ये बंदा? Yeah. And why is he behaving like this here? And then you realize कि तुम जितना seriously ले रहे हो इसको, इस entire YouTube के sphere को इतना मत लो. It's all an act. बिल्कुल. It might be a part of the person, sure. Yeah. There is a tad bit of exaggeration added to it. A lot more than a tad bit, I would say. भाई तुम्हें क्या लगता है भाई? Films are there. Why do you think the most honest films don't work in India? They don't work because people want that exaggeration. They want the drama. Yes. They want the drama. Theatre is all about the drama, yaar. बिल्कुल. Why do you think this T-sys works in YouTube? Because the hype wala and not even just T, man, like the entire hype. If somebody comes up to their video, gameplay वाला video, and he's just hyped throughout. Yeah. मैं देख रहा हूँ लोग घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम्स करते हैं. बिल्कुल. And they're hyped throughout. You really think someone is hyped throughout their day 24/7? Bro, if they are on some drugs. Yeah. I'm telling you, they are on some definitely Fucking some very very big खतरनाक time, level big drugs. time appreciation time for Ajay. भोसड़ी के ने एक दिन 9 घंटे स्ट्रीम की एंड कॉन्स्टेंटली मेंटेन दैट कैरेक्टर. फक जितना जिसको बोलना है अजय को बोलो, ठीक है. ह्यूमन है, क्रिटिसिज्म के वर्दी है, बिल्कुल सही. जो बोलना है बोल लो. उसकी जैसी गांड घिसते हुए मैंने देखी नहीं है आज तक, ठीक है. मैंने नहीं देख ली कि बहन का लोड़ा ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे स्ट्रीम कर रहा है 4-4, 5-5 घंटे, ठीक है. और वो ही कैरेक्टर मेंटेन करके 1 घंटे स्ट्रीम करने के बाद गला दुखने लगता है मेरा. और वो तो अरे बहन आजा पाता कितना करता है भाई बहुत बर्बाद होती है. मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था रिसेंटली मेरे गेम प्ले चैनल पे. भाई 2 घंटे के बाद पीठ दर्द होता है यार. बहुत दिमाग खराब होता है तुम्हारा भाई. लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है कि गले से खून निकल रहा है भाई मेरा. मैं बोले जा रहा हूँ हाओ. बिल्कुल. और भाई सुनो तो ये सीन है कि मेहनत बहुत है इसमें सिनेरियो में. एंड ऑनेस्टली गाइज दैट इज वन ऑफ द रीजंस आल्सो कि लाइक हाँ यूट्यूब में करूँगा, अपने पेस में करूँगा. एंड देयर आर मच बेटर वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑनेस्टली. बिल्कुल मच बेटर, ठीक है. एंड यू विल बी मच हैप्पियर ऑल्सो. बिल्कुल. मेरा अनलेस तुम्हारी खुशी ये है कि तुम अगर अपने आप से सच बोल रहे हो, ठीक है. क्योंकि लोग बोल देते हैं बहुत इजीली होकर कि हाँ मेरा तो मन ही है यूट्यूब वीडियोस बनाने का. सच में तेरे को अगर मन है, तेरे को मजा आता है ना वीडियोस बनाने में, तो तुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है भाई. बिल्कुल सही. तो क्यों पुट कर रहा है? भोसड़ी बनाओ, रख ना अपने पास. बाहर चाहिए ना. यू वांट पीपल टू सी इट ना, देन ओन अप टू इट मदरफकर. बहुत देखता हूँ मैं एलोंडो को. नो आई डू इट एज अ हॉबी. शट अप. झापड़ दूंगा एक कस के, सोई मुंह टेढ़ा हो जाएगा तेरा चूतिया. कुछ पता नहीं, बोल बच्चन टिकाते रहते. मैंने इतने लौंडे देखे ना यार. नहीं भैया, आई तो एक्चुअली डोंट केयर अबाउट द ऑडियंस. मेरे को बोलते यू नो आई तो जस्ट वांट टू क्रिएट द. अभी मैंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि नीश कंटेंट इज नॉट रिवॉर्डेड ऑन यूट्यूब, ठीक है. नीश कंटेंट नेटफ्लिक्स पे चल जाएगा, एसेज नेटफ्लिक्स पे चल जाएंगे. अभी नहीं, मतलब आई वुडंट कंप्लीटली एग्री विद इट. इट हैज प्रूवन टू बी दैट इट इज नॉट रिवॉर्डेड ऑन यूट्यूब. अब तक इंडिया में नीश कंटेंट हैज नॉट बीन रिवॉर्डेड ऑन यूट्यूब. बाहर व्हाट डू यू कॉल नीश कंटेंट? देयर इज अ लॉट ऑफ द शिट दैट यू सी इज स्टिल फॉर द मासेस. Still a face cam, still talking to it, still jump cuts. When you say niche, there is things that people have their niches. Comedy. यार पता है ऑनेस्टली बाहर इंडिया से ज़्यादा नीच रहती है भाई, बहुत ज़्यादा. Yeah, people have their niches. खतरनाक. There is no niche content. The What do you way of talking, person has a niche. Delivering, person has a niche. Way of reacting, person has a niche. That's how the people differentiate. Niche content, a content that in itself is a niche. Essays is not rewarded. Captain Christian cannot, does not, would not make money off of YouTube. Very famous guy, Nerd Writer, does not, would not, cannot
make money off of YouTube, right? He has this other thing that he does. $200 if we go by the standard CPM, which is $1. He gets 200, 300k views out of 1 month. You know what I'm saying? But on Netflix, it works because there people are there to consume it. That platform. So that's why I was like, you know what? That's why I switched it, and that's why when I tweeted this, people are like, no, we can do it. No, you cannot. Stop lying to yourself. You cannot. Trust me. Tried it. You need to, until unless you mix it with extreme masses, you cannot. What you're asking for is it needs you audience. वो audience ना तुमको YouTube पे फ्री पे देखेगी ना, लंड पैसे नहीं कमा सकते तुम. जिसको जो बोलना है बोल लो, नहीं कमा सकते मतलब नहीं कमा सकते. नेटफ्लिक्स इसके लिए कमा सकता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेथड पे चलता है. क्योंकि what you're trying to say is अगर कोई स्टैंड अप कॉमिक है, YouTube will only give you the numbers and the like exposure. Yeah. पैसे तो तू नेटफ्लिक्स से ही कमाएगा, Amazon प्राइम से ही कमाएगा. बिल्कुल. शोज से कमाएगा. ले ले. Because all the stand up comedians are earning that money through them. ठीक है. And right now they are all on YouTube. Because they are not doing shows. जैसे मैंने उस दिन जिस दिन मैंने प्रखर की लाइव स्ट्रीम पे बोला था, ये तेरा एडवर्टाइजिंग है. तू लॉन्डो को लेके जाएगा वहाँ पे, 40 लोग को बेंच पे बैठाएगा, हंसाएगा और जो भी करेगा, ये तेरा एडवर्टाइजमेंट है. सिमिलरली स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है. मैं ऐसे इसकी बात कर रहा था. नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन मेथड है. जो लोग तुम्हारा कंटेंट नहीं भी देखते वो भी तुम्हें पैसे दे रहे हैं. मिलियन लोग हैं, मिलियन में से 30% भी अगर तुम्हारा कंटेंट देखते हैं, वो मिलियन सारे तुम्हारे पे कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स उनमें से पैसे कमा रहा है, उनका चंक तुम्हें दे रहा है. समझ रहे हो बेटा? नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं होता कि दे लाइक पे यू टू गेट दैट पीस ऑफ कंटेंट एंड नाउ नेटफ्लिक्स ओन्स इट. या बेसिकली ऐसा होता है ना. या नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का टाइटल आ जाता है उस पे. और तो ये पर यूट्यूब पे थोड़ी है. यूट्यूब अनटिल अनलेस यूट्यूब तुमको एक शो दे देता है भाई, तो बोलो भाई ठीक. हाँ, यूट्यूब ने अगर गेम ही चेंज कर दिया, वो तो कोशिश कर रही है. वो तुम यूट्यूब कर रहा है कब से? यूट्यूब ओरिजिनल्स के थ्रू ट्राइंग टू डू. बिल्कुल. ऑब्वियसली भाई, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाई आर दे फेलिंग एट इट तो? व्हाट? बिकॉज़ इंडिया में किसी को इतने पैसे खर्च करनी नहीं है. हाँ, इंडिया में नहीं है. इंडिया में तो फैड. नो, इट्स नॉट अ फैड. These shows have worked in the past, but well, I am not a great businessman because I haven't even finished that, so I cannot fault it. पर I think वो pigeon hole कर देते हैं एक तरह से फोकस. Maybe Netflix पे अच्छा ऐसे क्वालिटी के शो आते शायद YouTube ओरिजिनल्स पे नहीं आया ऐसा कुछ, तो हम क्यों देखें? शायद जैसे द बॉयज जो हो गई, Amazon प्राइम, तो मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं वो Amazon प्राइम इसलिए ले रखे हैं क्योंकि उनको बॉयज देखनी है. That is one of the reasons. एक दो शो होते हैं खतरनाक. मे बी YouTube ओरिजिनल्स में कुछ ऐसा आया नहीं है. Scare PewDiePie तो उन्होंने काट दिया भाई. I would have gotten Scare PewDiePie if they released season 2. I wonder how many people would. They fucking release bad fucking Logan Paul movies, man. Fucking fuck bench sinning winning क्या है ये? They should release something by Casey, man. Nice start. Man, Neistat still, like 5 years ago, his videos he was pulling 10 million per video, you know, when he was posting. Do you see last 5 days he has been yeah consistently 6 days right. He just posted another 6 days, man. I'm so excited. I'm like, yes, I think he's going back to New York. मेरे को लग रहा है वो न्यूयॉर्क चला जाएगा वापस. बोल रहा था LA कि क्या बोलते हैं उसको कि मेरी बीवी को पसंद नहीं आ रहा LA this that. I think he'll go back to his studio. Entrance in his studio, I would just like amazing vibes यार. This is a big Casey Neistat. वो साला 10 मिलियन पुल करता था. हाँ नहीं, that was overtime. पर वीडियो पे. हाँ yes I know. पर वो लाइक हर महीने के एंड में उसके 70 मिलियन व्यूज होते थे 2017 में. मैं देख रहा था अभी थोड़े दिन क्या कल ही देख रहा था सोशल ब्लेड पे. 70 मिलियन महीने के एंड में, एंड ही वाज अपलोडिंग रेगुलरली 30 वीडियोस. 1.5 अगर मान के चलें, दैट्स 45 मिलियन मैन. आराम से अराउंड 2 मिलियन पर वीडियो, 2.5 मिलियन पर वीडियो, 2 मिलियन के आसपास. बहुत right? करता था वो. हाँ, अभी फिर से करेगा ना रेगुलर. आई थिंक और भी ज़्यादा जा सकता है तो. यार उसकी क्वालिटी ना बहुत, बंदा बहुत ही गांड डन इट सो बहुत ही ज़्यादा. उसकी स्टोरी होती है भाई वीडियोस में. इट्स नॉट अ हाउ हैज ही मैनेज, दैट गाय हैज मैनेज टू मेक एमेच्योर वीडियोस. लाइक यार कैसे तू उसकी अभी उठा ले अभी की 5 वीडियोस उठा ले. चीटी वाली बनाई अभी उसने. भाई चीटी वाली बनाई, क्या है स्टोरी उसमें भाई? ऐसे खतरनाक वे में बताया उसने भाई. ऐसे लोग ना, एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज ओरिजिनल टू केसी.
पीपल कम बिकॉज इट इज केसी, ठीक है. दे डोंट, उसकी जो ऑडियंस आती है ना 1.5 वाली, दे आर लाइक भाई केसी आ गया, दिन बन गया मेरा, मैं कुछ तो देख लूंगा दिन में. मैं तो अभी ऐसे देखता हूँ भाई कि भाई केसी की वीडियो है, रात को देखूंगा बैठ के, आएगा आज तो पक्का डालेगा वो, क्लिक तो होने वैसे ही इरफान जुनेजो वाली जो वीडियो होती है, वो जो डालता था व्लॉग्स, आज इरफान जुनेजो सर डालेंगे व्लॉग, हमको तो बैठ के आराम से चिल मार के देखना है, ठीक है. ऐसे होती है कि तुम ऐसा कुछ कर दो कि बंदे को देखना है कि कुछ तो करेगा, ठीक है. यही बिल्ड करनी, यही ऑडियंस, ये तो उसकी कोर ऑडियंस बन चुका है. हाँ भाई, ये है, उसको फर्क नहीं पड़ता. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो. तुम्हारी 1 मिलियन व्यूज आ जाए, तुम 50 मिलियन पे भी हो ना, और तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज आ जाए, हो गया भाई तुम्हारा हो गया. तुम्हारे पर वीडियो अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, यू आर अ सक्सेस. ठीक है, यू आर अ सक्सेस. यूट्यूब आए ना आए, यू आर बेसिकली सेइंग कोई भी ब्रांड अगर मेरे साथ टाई अप करना चाहती है, आई विल गिव यू 1 मिलियन पीपल एज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. Why would anybody not throw money in your face? 100K easy and dollars. I'm telling dollars. Casey can easily charge 100K dollars. वो चार्ज करता है 100K. उसने ईथन का इसमें बताया था कि 1.6 around 100K dollars. I was like, wow, इतना पैसा है लोगों के पास, इतना ज़्यादा पैसा है. Now we are going through that entire social dilemma वाला scenario where like भाई people are just feeding. Yeah, ये तो है. But I guess, yeah, this is a good time to end the episode. Hopefully, I think a lot more people will listen to this on Spotify. Man, we did a 1.5 hour long. So yeah, cool. Chalo. Thank you everyone for watching. This was great. Bye-bye. Bye.